Good morning, students. Now, today we are just going to talk a little about kinetic theory of gases, and after that, I am going to tell you some topics you are going to be doing along with thermodynamics chapter. Because when you see NCERT books and when you see national level books, KTG and thermodynamics are together. In your book, we have given as per the sequence which is given in the government textbook. That means 10th chapter is kinetic theory of gases and 11th chapter is thermodynamics. But otherwise, NCERT point of view, NEET point of view, JEE Mains point of view, you will see the questions together. The first exercise which you will see in the different books is behavior of gases, which we have done. Real gases, ideal gases. The second exercise which you are going to see in the books is pressure, P is 1/3 rho c square, and kinetic energy equations. Kinetic energy per mole, 3/2 RT. Kinetic energy per gram, 3/2 RT upon bada h, molecular weight. Kinetic energy per molecule, 3/2 RT upon N0, Avogadro's number, which is 3/2 kD also. And kinetic energy per volume. That is going to be the second exercise in your books. The third exercise is going to be RMS velocity, most probable velocity and average velocity. Right? अभी जो फोर्थ एक्सरसाइज है ना बेटा, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ये हम लोग होल्ड पे रखने वाले हैं. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ये आपका थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के साथ में होगा, बिकॉज ये केटीजी में भी है, थर्मोडायनेमिक्स में भी है. तो एक ही टॉपिक पे दो बार क्यों टाइम वेस्ट करने का, इट इज रियली वेस्ट ऑफ टाइम. अब जैसे मैंने स्पेसिफिक हीट्स ऑफ गैसेस हीट 1 के बुक में करा दिया था, आप देखोगे कि ये बुक में भी है, तो इधर हम लोग सीधा बोलेंगे ये हो गया है अपना. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो वन बाय वन जो मैं बोल रहा हूँ सुनो ध्यान से. Are you all on KTG का book? Page number 15. There were totally 6 laws. Boyle's law done, Charles law done, Gay-Lussac's law done, Dalton's law partial pressure done. Now I am taking you on to Avogadro's law. Very very simple. When we talk about ideal gas equation, do we write PV is equal to nRT? And then after writing some steps, we also write PV is equal to बड़ा N के छोटा K and T. Yes or no? I hope you have understood this. ये N को मैंने रखा होगा N upon N0 बराबर number of molecules given upon Avogadro's number times RT. This is equal to PV. और बाद में मैंने ये R और ये N0 को साथ में लिया होगा which is K. Equation समझा बेटा आपको? Avogadro's law is super simple. It says that if we have two gases whose pressures are same, whose volumes are same, and whose temperatures are same, then can I say by default their number of molecules must be same, because K तो वैसे भी constant है. So if I am taking two gases having same pressures, same volumes, and same temperatures, by default their number of molecules will be the same. Page number 58, article E, done. D, okay, D, done. Please check. Yes बेटा, इजी था एकदम. ये आर्टिकल ऑफिशियली केमिस्ट्री में ही है, फिजिक्स में है ही नहीं, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स के साथ साथ में फिजिक्स में हम लोग इसका स्टेटमेंट दे देते हैं. दिस इज कॉल्ड ग्रेहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन. डिफ्यूजन वर्ड सुना है बेटा आप लोगों ने? डिफ्यूजन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ पॉइंट एट हायर कंसंट्रेशन और फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन. सो सपोज दिस इज द क्लासरूम and here there are 100 molecules and here there are 70 molecules, high concentration, low concentration. So when the gas flows, when it undergoes diffusion, then the rate of diffusion, the rate at which diffusion takes place is found to be inversely proportional to the square root of density of the gas. It is found to be inversely proportional to square root of density of the gas. इसमें आप लिख के रखो टाइटल के बाजू में, ऑफिशियली दिस लॉ बिलोंग्स टू केमिस्ट्री. आपको फिजिक्स में इसके ऊपर हार्डली क्वेश्चंस मिलेगा, शायद किधर कोई थियरी क्वेश्चन दिख गया तो, लेकिन फिजिक्स के बुक में आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं मिलेगा. बराबर. अब मैं जो बोलता हूँ बेटा एकदम ध्यान से, क्योंकि फोर्थ कमिंग एग्जाम्स में जब भी केटीजे का चैप्टर में अनाउंस करूंगा तभी ये टॉपिक्स नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है. राइट? Are you on page number 16?
Are you on page number 16? Done. पेज नंबर 17 डन. सीधा पेज नंबर के ऊपर टिक करो. पेज नंबर 16 डन. पेज नंबर 17 डन. आर यू ऑन पेज नंबर 18? डन. पेज नंबर 18 डन. अप्लाई कॉमन सेंस. हम लोग काइनेटिक एनर्जी का कोई भी फॉर्मूला लिखते थे. मेजॉरिटी ऑफ द फॉर्मूला में टेम्परेचर आता था. काइनेटिक एनर्जी पर किलो मोल इज इक्वल टू 3/2 बड़ा आर बड़ा टी. बड़ा टी आया. काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3/2 के बड़ा टी आया. काइनेटिक एनर्जी पर किलोग्राम इज 3/2 बड़ा टी अपन बड़ा कैपिटल टी आया. सो डू वी से दैट kinetic energy is directly proportional to temperature? So if you want to decide ki how hot that gas is, right, then in a ways you are calculating kinetic energy. Or suppose you have calculated kinetic energy, that means can we say ki what must be the temperature of the gas that you can make out? Yes or no? So kinetic energy, ya to we call this article as kinetic interpretation of temperature. Temperatures we understand with the help of thermometers. But if you want to understand temperature on the basis of kinetic theory of gases, then what? Very simple paragraph. It already अपना हो चुका है. पढ़ो आप. Page number 18. The article kinetic interpretation of temperature. उसके बाद का आर्टिकल भी बेटा आप लोगों को मालूम है. RMS velocity is root of 3RT upon m. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है the gas molecules go fast. So if I talk about RMS velocity of hydrogen molecule at NTP, was it 1840? हाइड्रोजन का RMS velocity was 1840. राउंड फिगर बोला था मैंने. एक्चुअल वैल्यू इज 1842. RMS velocity of helium मैंने राउंड फिगर बोला था 1300. राइट. एक्चुअल वैल्यू इज 1304. नाइट्रोजन का स्पीड बोला था मैंने 496. राउंड ऑफ करके बोला था 500. एक्चुअल वैल्यू इज 496. ऑक्सीजन का स्पीड मैंने बोला था 460. ऑलरेडी राउंड फिगर है. बराबर. लेकिन बेटा ये सारे के सारे एनटीपी पे थे कि नहीं? मतलब ये सारे के सारे आंसर्स आपके थे 0 डिग्री सेल्सियस पे. दैट इज 273 केल्विन पे. लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे ये वैल्यू बढ़ेगा कि नहीं? एंड जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा वैसे वैसे ये वैल्यू कम होगा कि नहीं? Yes or no? So this part also we have done. You can check. Page number 18 का lower half also we have done. You don't need to remember those long paragraphs. ये already मैंने as a shortcut आप लोगों को list of formula में ऐड करवा दिया already. अच्छा just let me know. I have given iPad notes of KTG, right? दे दिया है ना iPad notes. अभी नेक्स्ट आर्टिकल देखो बेटा. पेज 19. डू यू सी द टाइटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? एकदम बोल्ड लेटर्स में लिखो. दिस टॉपिक विल बी डिस्कस्ड विद द चैप्टर थर्मोडायनामिक्स. आपके ये सेम बुक में बेटा थर्मोडायनामिक्स चैप्टर है. दिस टॉपिक विल बी डिस्कस्ड विद थर्मोडायनामिक्स. मतलब नेक्स्ट कमिंग जितने भी एग्जाम्स आएंगे ना केटीजी में, आपको ये आर्टिकल नहीं पढ़ना है. जब वो थर्मोडायनामिक्स में होगा तभी हो जाएगा. राइट. लाइकवाइज पेज नंबर 20 ऑन होल्ड, 21 ऑन होल्ड. राइट. 21 पे आपको जो डायग्राम दिख रहा है ना, वहां तक वो टॉपिक है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का. उसके बाद में आपको एक नया आर्टिकल दिख रहा है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. अब इसका प्रैक्टिकल लाइफ मीनिंग एकदम सिंपल. ध्यान से सुनो. डू वी हैव काइनेटिक एनर्जी फॉर मॉलिक्यूल एज 3/2 kT. तो वो जो 3/2 kT है ना, वो हाफ kT x एक्सिस पे जाता है, हाफ kT y एक्सिस पे जाता है और हाफ kT z एक्सिस पे जाता है. राइट. व्हेन द मैथमेटिकल डेटा इज ह्यूज, राइट, वी फेल टू एक्सप्लेन दैट विद मैथमेटिक्स. सो वी एक्सप्लेन दिस विद स्टैटिस्टिक्स. मैंने आप लोगों को बोला पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मुझे एक्यूरेट आंसर मिलेगा ही नहीं कभी भी, क्योंकि वो पॉपुलेशन सेंसस चलता है 6 महीने तक. पूरा इंडिया जितना बड़ा कंट्री, राइट, मैं एक गाँव में जब पॉपुलेशन ढूंढने जाऊँगा, पता था 6 महीने के बाद मैंने मेरा डेटा सबमिट किया, तभी तक जो ना 15,203 लोग पैदा हो चुके हैं और 7,902 लोग मर चुके हैं. आई डोंट नो. जब तक मेरे पास उनका बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट नहीं आएगा तब तक मेरा डिफिकल्ट है. तो लोग जब भी पॉपुलेशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं राउंड फिगर बोलते हैं 140 करोड़ लोग, 140 करोड़ लोग, 140 करोड़ लोग. वो तो एग्जैक्ट नंबर होता ही नहीं है.
right? So we say that the energy is equally distributed along x-axis, y-axis and z-axis. Anyways, that article also is going to be done beautifully in the chapters thermodynamics. तो आप लोग same argument लिखो, will be discussed in the chapter thermodynamics. Will be discussed in the chapter thermodynamics. Turn the page, please. Turn the page. Upper half pending. Upper half pending. Check करो बेटा. Lower half we have done in heat 1 का book. Have we not done Mayer's relation? Have we not done CP/CV? Have we not done बड़ा CP minus बड़ा series बड़ा R? छोटा CP minus छोटा series छोटा R? Gamma is equal to CP upon CV. All these things we have done. So वो title के बाजू में लिखो. Already taught in the book of heat 1. Already taught in the book of heat 1. We have done so many MCQs on this. We did latent heat, everything. Specific heat of ice was half. Specific heat of water was 1. Specific heat of copper was 0.1 and so on. सामने वाला पेज पूरा हो गया. टिक करो. Page 23 done. Turn the page. Page 24 upper half done. 24 का lower half का title देखो बेटा. Specific heats of gases and law of equipartition of energy. अपना law of equipartition of energy thermodynamics के साथ होने वाला है. तो इधर भी लिखो will be done with thermodynamics. Will be done with thermodynamics. Is that clear? Turn the page please. सामने का पेज on hold because it is continuation. उसके बाद वाला पेज, right? Again it is continuation of that. और उसके बाद में आपका लिस्ट ऑफ फॉर्मूले शुरू हो रहा है. मतलब 3 आर्टिकल्स होल्ड पे है. 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, 2 लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी एंड 3 स्पेसिफिक हीट इन टर्म्स ऑफ लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ extraordinarily important chapters. The phase of December to June will be doing, physics department will be doing the toughest chapters, because at the end, right, when we are in the month of November 2025 or maybe first week of December 2025, which is 2024 right now. Right now the topics which I am teaching or my colleagues are teaching, they are the simplest topics, because at the end we keep very simple topics because you get less time to prepare them, right? So tough topics we normally finish in the first half of the year so that you get enough practice. Now here we need to know some real important mathematics. Being biology students, I know you have taken foundation course, but I just came to know you have just started with basics of derivatives, right? We will need derivatives and integration. So today's lecture is completely dedicated to mathematical tools, right? Mathematical tools which are going to be useful almost in all the chapters of physics. अब इसमें से आप लोगों को कुछ चीज़ें पता है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें नहीं पता है. यस सर, जो आपका शायद एक ही लेक्चर हुआ है डेरिवेटिव. तो अभी मैं नॉन स्टॉप 30 मिनट्स तक बोलूँगा. आपका फोकस सिर्फ बोर्ड पे होना चाहिए. Then approximately I'll give you 10 minutes to copy those things. You will copy these things in your fair book. राइट, अभी सर वाइज फेयर बुक है सबके पास. सत्येंद्र सर का बुक, मेरा बुक, महेश सर का बुक. फेयर बुक में चैप्टर वाइज बुक मत बनाना बेटा, बहुत सारे बुक्स बनाने पड़ेगा. सर वाइज बुक बनाओ. मेरा वेक्टर्स खत्म हो गया तो उसी में हीट कंटिन्यू करो, उसी में रेडिएशन कंटिन्यू करो, उसी में काइनेटिक थ्योरी कंटिन्यू करो. मेरा बुक खत्म गया, नया बुक बनाओ. इन द नेक्स्ट वीक यू आर गेटिंग अ न्यू बुक which is circular motion plus oscillation, right? You are getting a new book which is circular motion plus oscillation, and both these chapters I am going to teach, right? Here circular motion and oscillation, right? This book is under printing, and here in the entire book you are going to come across sine functions and cos functions. You are going to come across derivatives. You are going to come across some basic relations of integration. आप लोगों को याद हो तो मैंने वेक्टर्स में एक क्वेश्चन होल्ड पे रखा था और उसमें लिखवाया था मैंने वेट फॉर डेरिवेटिव्स. वो क्वेश्चन मैं आज करूंगा क्योंकि आज हम लोग इसके फंडामेंटल सीख रहे हैं. मेरे नेक्स्ट लेक्चर तक
मेरा आज का लेक्चर आप लोगों को पिट याद हो जाना चाहिए, बिकॉज ये मेरा लेक्चर चैप्टर नहीं है, एप्लीकेशन है। ये सारे के सारे एप्लीकेशन आप लोगों को फ्यूचर में काम में आने वाले हैं। इज दैट क्लियर? सो व्हेन आई एम टीचिंग समथिंग योर फोकस शुड बी कंप्लीटली ऑन द बोर्ड। व्हेन यू आर कॉपिंग समथिंग, एब्सोल्यूट साइलेंस, एक भी चीज गलत कॉपी मत करना, अदरवाइज गलत चीज अप्लाई करोगे फिर। One by one. Okay. First, we are talking about differentiation, which is also called derivative. It is differentiation, or it is also called concept of derivatives. कुछ बेसिक चीजें आप लोगों को पता है, खाली आप लोगों को बोलना है कि इसको रीड कैसे करते हैं। If I ask you dy by dx मतलब क्या? Is it derivative of y with respect to x? Derivative of y with respect to derivative of x नहीं होता है, with respect to x होता है। It is change in y with respect to x. Practical life application. Practical life application. अगर आपको मैं पूछूं कि how will you define velocity? What is velocity का definition? Rate of change of displacement with respect to time. Rate of change of displacement with respect to time. मतलब अगर मैं आपको वेलोसिटी पूछूं तो आप क्या लिखोगे? इट इज डी बाई डी टी ऑफ एस। यस और नो? आप लोग इसको नॉर्मल डेफिनेशन कैसे बोलोगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ, अभी खाली डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलने का, लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोलने का। Because when we were doing vectors, I told you, when we were discussing vectors, I told you that you are going to come across linear quantities also, and you are going to come across angular quantities also. Examples याद करवा देता हूँ बेटा, examples याद करवा देता हूँ। हम लोगों ने v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर किया था कि नहीं क्रॉस प्रोडक्ट में? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ v? Linear velocity. And what is the meaning of omega? Angular velocity. Likewise, when I write A is equal to alpha cross r, what do you think should be the meaning of A? Which acceleration? Very good. And this is? दूसरा इक्वेशन याद करो बेटा, L vector is r vector cross p vector. एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। मतलब जो जो चीजें हम लोगों ने वेक्टर्स में बोली थी, ये फॉर्मूले वहां पे रट्टा मारे थे हम लोगों ने। मैंने बोला था कि बेटा पहले ओमेगा आना चाहिए, बाद में ये आना चाहिए। ये चैप्टर में हम लोग प्रूव करने वाले हैं सर्कुलर मोशन में कि पहले ही ओमेगा क्यों आना चाहिए, बाद में ही क्यों आना चाहिए। इज इट क्लियर? सो व्हाट वी लर्न वी आर गोइंग टू प्रूव। एक और था, टॉर्क वेक्टर इज आर बार क्रॉस एफ बार। तो इधर बेटा कौन क्या था? इफ आई टॉक अबाउट फिजिकल क्वांटिटी, इफ आई टॉक अबाउट फिजिकल क्वांटिटी, लीनियर एंगुलर, लीनियर एंगुलर, लीनियर एंगुलर, लीनियर एंगुलर, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सीलरेशन, लीनियर मोमेंटम, लीनियर फोर्स, बराबर। मैं सिर्फ इसकी सिंबल्स लिख रहा हूं, फॉर्मूला ऑलरेडी मैं बाजू में लिख चुका हूं। लीनियर वेलोसिटी v, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट s, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, लीनियर एक्सीलरेशन a, एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा, लीनियर मोमेंटम t, एंगुलर मोमेंटम l, लीनियर फोर्स, लीनियर फोर्स के बदले एंगुलर फोर्स टॉर्क। यस और नो? तो जब आप इसको फिजिक्स में पढ़ते थे तो फिजिक्स में आप इसको कैसे डिफाइन करते थे? हाउ यू यूज्ड टू टॉक अबाउट दिस? डिड यू यूज्ड टू से दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम? लेकिन अभी खाली डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलने का, आज के बाद नहीं बोलने का, आज के बाद, बिकॉज नाउ यू नो दैट देयर आर एंगुलर थिंग्स आल्सो। सो इफ यू से कि सर इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी व्हिच डिस्प्लेसमेंट, लीनियर क्या एंगुलर? तो आप लोग पहले से ही बोल दो सर इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। सो फिजिक्स वाइज इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट with respect to time, with respect to time, right? Mathematics wise
Mathematics wise, we talk about it like this. Or it is first order derivative. Derivative का मतलब होता है change होना. Displacement is changing with respect to time. Therefore you get velocity. अगर बेटा मैं एक ही स्पीड से जा रहा हूँ, एक ही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, distance covered by me 1 meter, 1 meter, 1 meter, 1 meter, 1 meter. राइट, सेम टाइम सेम डायरेक्शन, ना मैं मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा हूँ ना मैं डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ. दैट मींस डिस्प्लेसमेंट इज रिमेनिंग कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. मैथमेटिक्स में भले आपने बेसिक्स से शुरू की है, लेकिन आप लोगों ने एक फॉर्मूला सीखा है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो. डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो. सो ओवर हियर डिस्प्लेसमेंट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देयरफॉर यू गेट वेलोसिटी. वेलोसिटी इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देयरफॉर यू शुड गेट एक्सीलरेशन. बाद में भले इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्शन चेंज होगा तो भी चलेगा. वेक्टर इज हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ. इसका या तो मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए, या तो डायरेक्शन चेंज होना चाहिए, या तो दोनों चेंज होना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट एक चेंज होना चाहिए. अगर दोनों कांस्टेंट है देन द वेलोसिटी इज जीरो बिकॉज़ इट इज गोइंग विथ यूनिफॉर्म रेट. राइट, सो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. बेटा ये मैथमेटिकल लैंग्वेज हुआ. अभी जो मैंने लैंग्वेज लिखा वो मैथमेटिकल लैंग्वेज. अब इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्यों बोलते हैं ये आपको अभी समझ में आ जाएगा. जैसे मैं एक्सेलरेशन लिखूंगा ना, आपको समझ में आ जाएगा कि सर ने इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्यों बोला था. राइट, प्लीज टेल मी व्हाट डू यू नो अबाउट एक्सेलरेशन. What do you know about acceleration? Acceleration is rate of change of velocity. But now you have to be specific in your language. Linear acceleration is rate of change of linear velocity with respect to time. अब देखो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? Is it d by dt of d by dt of s? सोचो. Because v was this, no? Because v was this. समझा अच्छे से? मतलब मैंने इसको दो बार लिखा, तो अब इसको फाइनली मैं कैसे लिखूंगा? d square by dt square of s. प्लीज नोट, d by dt फंक्शन है. मतलब आप ऐसे मत सोचना कि सर ने d और d मल्टीप्लाई किया इसलिए d स्क्वायर, क्योंकि अगर मैं ये कर रहा था तो फिर मुझे ये d और ये d को भी मल्टीप्लाई करना चाहिए. तो ये हो गया d स्क्वायर t स्क्वायर, फिर मैं d स्क्वायर कैंसिल करूंगा. ऐसा नहीं कर रहा हूं. d by dt is a function, right? You cannot write sin of 30 degree upon 30 is equal to 30 cancel and this is sin of degree. ये क्या होता है बेटा? sin of 30 degree upon 30 is 1 by 60 because sin of 30 degree is half. Yes or no? Yes. So sin is a function. If I give you sin of x upon x, you cannot cancel x saying that this is same. This is stupid. Sin of what? Incomplete statement. Logic समझा? तो अब इसको रीड कैसे करते हैं ध्यान से सुनो. अभी मुझे सीधा मैथमेटिकल तरीका चाहिए. Is it first order derivative of, बोलो, linear velocity with respect to time or second order derivative of, बोलो, very good, linear displacement with respect to time. समझा बेटा? फिजिक्स वाइज कैसे बोलने का और मैथ्स वाइज कैसे बोलने का समझा? बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट. चल, फिजिक्स वाइज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, राइट? मैथ्स वाइज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. फिजिक्स वाइज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. मैथ्स वाइज दो डेफिनेशंस. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ लीनियर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अच्छे से समझा बेटा? एक और पूछता हूं जो आप लोगों को स्कूल लेवल से ऑलरेडी पता है, फिर और एक पूछता हूं जो भी आप लोगों को स्कूल लेवल से पता है.
and then I will start with laws of derivatives. Current के बारे में क्या जानते हो बेटा? What is current? Charge rate of flow of charge. Very good. So I is equal to Q by T से better तरीका है dQ by dt. Right? तो बेटा इसको आप मैथ्स वाइज कैसे बोलोगे? मैथ्स वाइज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बोलने का, बिकॉज मैग्नेटिक चार्ज भी होता है. इलेक्ट्रिक चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू ओके. एक और आपको पता है न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है? Rate of change of momentum is directly proportional to force and takes place in the direction of the force. इसका मतलब ये होता है बेटा कि force is mass into acceleration. Is it mass into final velocity minus initial velocity upon time? So is it final momentum minus initial momentum upon time? Right? Acceleration is a vector, force is a vector, final velocity is a vector, initial velocity is a vector, final velocity is a vector, initial velocity is a vector. So this is final mom minus initial mom upon time. Yes or no? So force is also dp by dt, change in momentum for the corresponding change in time. इसको बेटा मैथमेटिकली कैसे बोलोगे आप? First order derivative momentum, linear momentum with respect to time. First order derivative of linear momentum with respect to time. तो बेटा फिजिक्स में कैसे बोलते हैं और मैथ्स में कैसे बोलते हैं समझा? Now I start with the rules. Okay? Now I start with the rules. Mathematical rules. मैं जो स्टाइल में लिख रहा हूँ ना, आप लोग बिल्कुल यही स्टाइल में कॉपी करोगे. नेक्स्ट टाइम के लेक्चर के लिए मैं जो भी लिखने वाला हूँ आज और जो भी लिखवाने वाला हूँ, everything is homework 2 times. Don't just mechanically copy the things from your notes. Master them. Master them, because in every physics lecture you will need this. Okay, now check basic laws of differentiation or derivatives. Basic laws of derivatives या तो differentiation. पहले ऐसे कुछ जो आपको पता है और फिर ऐसा कुछ जो आपको नहीं पता है. Concentrate one by one. The first one, what is d by dx of x? Very good. इसमें ऐसा मत सोचना कि सर ने dx और dx कर दिया. इसके पीछे का रूल है d by dx of x raised to n is nx raised to n minus 1. So what do we say? We say that power becomes coefficient and the new power is reduced by 1. How do we say this? Power becomes coefficient and new power reduces by 1. New power reduces by 1 बराबर reduces by value 1. Right? So you can treat this as d by dx of x raised to 1. So it is 1x raised to 1 minus 0 na actually. And therefore your answer is 1. Right? Very, very important. How do you put this in words? Derivative of x with respect to x is 1. Right? With respect to is very, very important. अगर बेटा मैं इसको d by dt of x लिखूंगा ना, 1 minus 1, sorry, slip of ink. बोला तो बराबर था मैंने. Okay? When you say d by dt of x, तो फिर उसका मीनिंग चेंज हो जाता है. d by dt of x is not 1. d by dt of x is counted as derivative of displacement with respect to time, which is velocity. Because x also can be displacement, y also can be displacement, z also can be displacement. X can be displacement, y can be displacement, z can be displacement. Therefore, s is displacement. 3 dimension. X times I plus y times j plus z times k. मतलब वेक्टर्स आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले. Yes or no? वेक्टर्स आप लोगों को उतना लेवल पे याद रखना है. रूल नंबर 3 जो आपको पता है. अच्छा, इसका एक एग्जांपल पूछता हूँ बेटा. फॉर एग्जांपल, इफ आई आस्क यू व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 5x cube? Will it be 5 out because constants come out?
d by dx of x cube 15x. very good. Is it 5 into 3x square? So is it 15x square? समझा बेटा? चलो next rule. What is d by dx of constant? 0. Derivative of constant is always 0. If I ask you what is derivative of pi with respect to x? 0. x कितना भी हो उससे pi को कोई फर्क नहीं पड़ता है. pi is always 3.14. वो हमेशा रहने वाला है. It does not change with time. It does not change with space. It's a fixed value, constant value. So derivative of constant is always 0. For example, वो constant का मैं कोई तो symbol ले लेता हूँ. For example, d by dx of k is 0. तो मुझे यहाँ पे बोलना पड़ेगा कि k is constant. Yes or no? इधर x अकेला आया था, इधर k अकेला आया. अभी दोनों साथ में आ रहे हैं. Then what is d by dx of kx? k बाहर, right? Is it k d by dx of x? And d by dx of x is formula number 1. So can I say this will be k vanza? And therefore your answer is k. Yes or no? X alone, k alone, k and x together. Variation समझ में आ रहा है? Yes or no? The next rule. What is derivative of sin x? Cos x. प्लस की माइनस? वेरी गुड. अब मैं लाइन से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो. What is derivative of k sin x? k बाहर जाएगा बेटा, k बाहर जाएगा, right? And it will be d by dx of sin x. d by dx of sin x मतलब आपका फॉर्मूला नंबर 5 है. So this will be k cos x. बराबर? अब नया आ रहा है जो आपने शायद मैथ्स में नहीं सुना है. ध्यान से सुनो. What is derivative of sin kx? ध्यान से सुनो. इधर k sin फंक्शन के बाहर था, मतलब ये sin x, sin 30, sin 45, sin 60 कुछ भी हो, उससे k को फर्क नहीं पड़ता था. But suppose k is having value 2, right? So this will be sin 230 sin 260 sin 290 मतलब ये कांस्टेंट होते हुए भी x की वैल्यू भी तो बदल रहा है ना. वो एंगल इज बिकमिंग डबल ऑल द टाइम, राइट? तो यहाँ पे रूल है, ध्यान से देखो मैं क्या रूल लिख रहा हूँ. दिस इज कॉल्ड आउटर इनर रूल. जो मैथ्स में उसका नाम अलग होगा, मैथ्स में दे विल कॉल दिस एज चेन रूल, राइट? ये आप लोगों ने अभी तक किया नहीं. मैं थोड़ा इसको सिंपल बना के बोलता हूँ. दिस इज कॉल्ड आउटर, एंड दिस इज कॉल्ड इनर. ये सब रूल्स आज मैं अप्लाई कर रहा हूँ लेक्चर के एंड में. अपना वेक्टर का जो क्वेश्चन पेंडिंग है ना, वेट फॉर डेरिवेटिव्स, उसमें ये अप्लाई करने वाला हूँ मैं. सो ध्यान से. द रूल इज डेरिवेटिव ऑफ आउटर keeping inner as it is, मतलब इनर को डिस्टर्ब नहीं करने का, इनटू डेरिवेटिव ऑफ इनर. ये बेटा आउटर इनर रूल है. मैथ्स में वो लोग इसको चेन रूल बोलेंगे, मैं इसको थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूं. अभी ध्यान से सुनो, सॉल्व कैसे कर रहा हूं मैं. हु इज आउटर? What is derivative of sin? Cos. Keeping inner as it is, so cos kx into derivative of inner, that means d by dx of kx, and d by dx of f kx is formula number 4. मतलब मैं हर एक नेक्स्ट फॉर्मूला में मेरा प्रीवियस नॉलेज यूज कर रहा हूँ, राइट? डेरिवेटिव ऑफ आउटर, डेरिवेटिव ऑफ साइन इज cos, कीपिंग इनर एज इट इज, मतलब kx as it is, into derivative of kx, because ये भी तो x पे डिपेंडेंट है. तो जो x पे डिपेंडेंट होता है वो वेरी होता है, राइट? व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ kx? k. So is my final answer cos kx into k, मतलब my final most answer is k cos kx. समझा बेटा? श्योर? इसमें सिर्फ x था, इसमें सिर्फ k था, राइट? इसमें सिर्फ k था, इसमें दोनों साथ में है.
अभी इसमें साइन एक्स था, नेक्स्ट वाले में के साइन एक्स है, नेक्स्ट वाले में साइन के एक्स है, नेक्स्ट वाले में के साइन के एक्स होगा। मीन्स व्हाट, इसमें के है ही नहीं, इसमें के बाहर है, इसमें के अंदर है, इसमें के बाहर भी है अंदर भी है। आराम से बेटा सोच के, डी बाई डी एक्स ऑफ के साइन के एक्स, बोलो क्या करोगे? ये के बाहर गया बराबर, इज इट के डेरिवेटिव ऑफ साइन के एक्स, and derivative of sin kx is my formula number 7. Derivative of sin kx is my formula number 7. So is it k into k cos kx. So मेरा फाइनल आंसर क्या हो गया बेटा? k स्क्वायर cos kx. ये k स्क्वायर अंदर लेके k क्यूब नहीं करने का, ये k बाहर लेके k क्यूब नहीं करने का। प्लीज बी केयरफुल। अगर बेटा मैं पाई साइन पाई एक्स बोलता हूं ना, तो ये दोनों पाई का मतलब अलग है। ये पाई 22/7 है और ये पाई 180 डिग्री है, बिकॉज ये साइन ऑफ सम एंगल होता है। ओह माय गॉड, समझा? मीनिंग पूरा चेंज होता है लोकेशन के ऊपर से। आपण यांना पाहिलं का? आपण यांना पाहिलं का? Have you seen this person? किसी का बच्चा खो जाता है तो पुलिस स्टेशन में फोटोग्राफ के साथ एडवर्टाइजमेंट देता है और बोलता है यू विल बी रिवॉर्डेड बाय हेवी अमाउंट। अब सोचो ये दोनों बेटा इंटरचेंज हो गया। आपण यांना का पाहिलं? Why you have seen this? Same meaning ना, मतलब वर्ड सेम, लोकेशन डिफरेंट, मीनिंग डिफरेंट। यस और नो? यहां थूकना नहीं, फुल स्टॉप। थूकने वाले को सजा होगी। यहां थूकना, फुल स्टॉप शिफ्टेड, नहीं थूकने वाले को सजा। So you have to be very careful. No jokes apart, seriously बेटा, but you have to be very careful. ये मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं, ये मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं। So it's my duty to tell you, भले in the form of funny examples, बट एटलीस्ट ये कट करने से पहले मेरे आंसर की याद आएगी ना कि नहीं करना था। यस और नो? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाहर पाई है तो वो एल्जीब्रा है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर पाई है तो वो वेक्टर एल्जीब्रा है, मतलब ज्योमेट्री है, मतलब एंगल है। यस और नो? यहां तक समझा बेटा? यहां तक समझा? तो इसके बाद वाले में आपको कुछ नहीं करना है। देखो मैंने शुरू कैसे किया था, मैंने साइन से शुरू किया। अपने मैथ्स फाउंडेशन में सिर्फ यही किया है क्योंकि बेसिक फॉर्मूले किए हैं सिर्फ। आप लोगों ने के साइन एक्स नहीं किया होगा, ये मैंने नया किया, ये मैंने नया किया, ये मैंने नया किया, राइट? अब मैं 9th फॉर्मूला लिखूंगा जो आपको पता है। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ cos x? देखो कितना फटाक से बोला, बस करना कुछ नहीं है। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ k cos x? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। What is derivative of cos kx? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बाद में साथ में बोलो। What is derivative of k cos kx? इजी है कि नहीं बेटा? चलो, your time starts now. Derivative of k cos x? Minus k sin x. Proud of you. What is derivative of cos kx? Minus k sin kx. What is derivative of k cos kx? Minus k square sin kx. And finally, what is derivative of log x? Very good बेटा, very good. इसमें से आप लोगों को ये पता था, ये पता था और ये पता था। बाकी के आपके नेक्स्ट लेक्चर में होने वाले हैं, बराबर? लेकिन उसके पहले हम लोगों को फिजिक्स में इसकी जरूरत पड़ते रहने वाली बार बार। योर फाउंडेशन लेक्चर कम्स वंस अ वीक, फिजिक्स लेक्चर्स विल कम 5 times a week. उसमें से मेरे 2 लेक्चर्स आएंगे, तो आई कैन नॉट गो विद द पेस विथ विच मैथ्स फाउंडेशन इज गोइंग, क्योंकि मुझे हर जगह पे लगेगा बेटा वो। यस और मैंने बोर्ड पे जो 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 लिखा एकदम अच्छे से समझा, सुपर डुपर श्योर। ये बेटा एकदम परफेक्टली बाय हार्ट हो जाना चाहिए। मतलब नींद में भी उठा के पूछे ना, तो आपको कैसे नींद में भी उठा के पूछा तो टेबल आता है, वैसे ही आना चाहिए। आपको कोई इतना हाई फाई मैथमेटिक्स नहीं है, नीट के स्टूडेंट्स को कोई इतना हाई फाई मैथमेटिक्स नहीं है।
एक आध दो लेक्चर में जहाँ पे भी मैंने ऐसे इतना टाइटल लिखा और उतना मैथ्स भी कर लिया मॉडल में, इज दैट क्लियर? बट लेकिन वो परफेक्ट आना चाहिए, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना। राइट, योर फेयर बुक प्लीज एंड स्टार्ट कॉपिंग दिस। एब्सोल्यूट साइलेंस, नो टॉकिंग एट ऑल। आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स फ्रॉम नाउ। हो जाना चाहिए एकदम परफेक्ट। Absolute silence. 3, 2, 1. Mind you, today I am going to teach you some laws of integration also. Integration का मतलब होता है एंटी डिफरेंशिएशन, इसका उल्टा, वो भी हम लोग आज ही करने वाले हैं। तभी आपको एकदम परफेक्ट आना चाहिए, एकदम परफेक्ट लिखो। एकदम साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस। मैं 5 मिनट के बाद पिन गिराऊंगा, मुझे आवाज सुनाई देगी। सुबह सुबह इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हो यार तुम? सर आपके स्टूडेंट।
if you are done up to fourth, then I'll start doing little work for integration. No. Okay, at least you have done till 3 at least. Yes. खाली बेटा ये फर्स्ट कॉलम हो गया आप लोगों का? Only first column. Everyone? No. Not yet. Shall I rub only the left column up to formula number 3? Shall I rub the second column, beta?
Up to 4. Not yet. Up to 3 at least. Shall I have 4 now? Everyone? Everybody beta 4. Writing with? Oh. कोई कोई जगह पे ऐसा हाईलाइटर मुझे थोड़ा रेड यूज करना पड़ेगा.
व्हाट अबाउट द थर्ड कॉलम बेटा? कहाँ तक आए आप लोग? फर्स्ट खत्म हो गया, थर्ड कॉलम खत्म हो गया। वहां पे स्टॉप करना, वहां से आगे मत लिखना, बिकॉज देन आई हैव टू एक्सप्लेन फर्स्ट कि मैं सिर्फ आप लोग बिजी हो इसलिए मैं अपना टाइम यूज कर रहा हूँ। हाँ, वहां पे स्टॉप करना प्लीज। शैल आई रब द थर्ड कॉलम एटलीस्ट अप टू फॉर्मूला 1? Yes. Okay. How about formula 2 going on? हो गया बेटा? अब ध्यान से सुनो, बिकॉज नाउ वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू कॉन्सेप्ट। एकदम ध्यान से। हैव यू फिनिश्ड अप टू एंड और नो? ओके, नो प्रॉब्लम, कैरी ऑन। व्हाट अबाउट फॉर्मूले 3, 4, 5? फॉर्मूले 3, 4, 5 डन? आई एम नो इन हरी, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, वी कैन वेट। शुरू करो बेटा, एकदम ध्यान से सुनो, बिकॉज ये पार्ट तो अभी तक आपका फाउंडेशन कोर्स में बिल्कुल भी शुरू नहीं हुआ है, एंड वी विल नीड दिस इन एमसीक्यूज। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का सिंबल इज दिस, इंटीग्रेशन का सिंबल इज दिस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन इज उल्टा ऑफ डेरिवेटिव, एंटी डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। लेट मी मेक इट सिंपल फॉर यू विथ एन एग्जांपल। याद करो बेटा, डिड वी से sin of 30 degree is equal to half, and therefore did we say उल्टा? मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, साइड चेंज करने का। so did we say sin inverse of half is 30 degree? Right? My father's name is Lalit.
I'm saying Nayan is son of Mr. Lalit Verma. So in ulta language can I say Mr. Lalit Verma is father of Nayan? Meaning change नहीं हुआ, खाली sentence उल्टा बोला, right? इसका मतलब ये होता है बेटा कि if derivative of x is 1, बराबर ना, यहाँ पे कहीं भी था मैंने रब कर दिया. If derivative of x is 1, that means integration of 1 with respect to x should be x. I repeat, ये d by dx shift करने का बेटा. तो मैं इसको पार्टली ब्रेक करके बता दूं, खाली सुनना ध्यान से. ये मैंने लिखा है और बाद में बोला वी मस्ट नॉट राइट दिस, मतलब ये स्टेप गलत है, लेकिन बेटा डायरेक्ट ये स्टेप लिखूंगा तो आपको बाउंस हो जाएगा, इसलिए मैं इंटरमीडिएट स्टेप लिख रहा हूं. ध्यान से देखो मैंने क्या किया. ये dx मैंने शिफ्ट किया, so is it 1 dx. इधर बचा डिफरेंशिएशन ऑफ x. अब ये गलत क्यों है? बिकॉज d by dx फंक्शन है, उसको मैं अलग नहीं कर सकता हूं. आई कैन नॉट स्प्लिट इट. यस और नो? तो ये स्टेप खाली मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है. आप लोग भी लिखोगे, मेरी तरह हाईलाइट करोगे, फिर लिखोगे वी मस्ट नॉट राइट दिस. तो फिर क्या किया? दिस डिफरेंशिएशन अंडरगोज चेंज ऑफ साइड. जैसे आपका साइन फंक्शन ने साइड चेंज किया ना बेटा, तो आपने इसको 1 अपॉन साइन नहीं लिखा था, याद करो. मैंने बोला था बेटा कि अगर आप 2x is equal to 10 लिखते हो, राइट, therefore x is equal to 10 upon 2 लिखते हो, तो वैसे आप साइन का साइड चेंज करके उसको 1 अपॉन साइन नहीं लिख सकते हो. इट इज नॉट कोसेक, इट इज साइन इनवर्स. लॉजिक समझा? सो व्हेन डिफरेंशिएशन चेंजेस द साइड इट बिकम्स इंटीग्रेशन. तो ये स्टेप गलती से भी नहीं लिखने का. आप लोग अपने नॉलेज के लिए लिखोगे, अपने बुक में लिखोगे, लेकिन जब एग्जाम में लिखोगे ना, ये स्टेप गलती से भी नहीं लिखने का. इट इज रॉन्ग मैथमेटिक्स, क्योंकि आप फंक्शन स्प्लिट नहीं कर सकते हो. लेकिन बेटा इसके ऊपर से मैं डायरेक्ट ये लिखता ना, तो शायद आपको बाउंस कर जाता. वापिस एक बार सुनो. इफ डेरिवेटिव ऑफ 1 is x, if Mr. Lalit Verma is father of Nayan, then Mr. Nayan is son of Mr. Lalit Verma. Is that clear? समझा बेटा? If derivative of x is 1, that means integration of 1 is x. लेकिन with respect to होना जरूरी है, क्योंकि मान लो आप इधर लिखते d by dt of t is 1, तो इधर आपको लिखना पड़ता t is integral dt. Yes or no? इसका एकदम सिंपल मतलब ये होता है बेटा, इंटीग्रेशन का मतलब होता है to add small things to get a larger thing. Let me use language which is extremely easy for bio students. Very easy. I'm walking 1, 2, 3, 4, and I'm covering a distance of 2 meters. I'm walking 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I'm covering a distance of 2 meters. पहले मैंने बड़े steps लिए, बराबर. Every step was half meter. Multiply by 4 steps, 2 meters. फिर मैंने हाफ का हाफ किया. Every step was 1/4 meter. इसका मतलब ये हुआ कि adding some things to get a bigger thing. If I go for 1 plus 2 plus 3 plus 4, I get answer 10. If I go for 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, I get answer 15. But when I go for this addition, do I take any number between 1 and 2? 1 के बाद डायरेक्ट 2 पे जंप मारा, means I am taking sum of some natural numbers. 1 के बाद 2 के बाद डायरेक्ट 3 पे जंप मारा. जब मैं 1 plus 2 plus 3 equal to 6 लिखता हूँ, did I take 2.57 anywhere? No. Did I take 1.09 anywhere? मतलब you are adding specific group of numbers. Yes or no? But when I say कि बेटा मैंने आपको नंबर लाइन दिया है, मैंने आपको नंबर लाइन दिया, ये आपका नंबर लाइन है. ओके, x is equal to 0, x is equal to 1, x is equal to 2, x is equal to 3, x is equal to 4, x is equal to 5. मैं बोलता हूँ आप 1 से लेके 4 तक का सेगमेंट बनाओ. तो आप 1 से शुरू करोगे और आप 4 तक जाओगे और आप बोलोगे कि सर आई हैव ड्रॉन द सेगमेंट ऑफ साइज 3. आर यू नॉट टेकिंग ईच एंड एवरी नंबर व्हिच इज कमिंग बिटवीन 1 and 4? Yes. आपने कुछ भी स्किप किया क्या? इसको बोलते हैं कंटिन्यूटी. मतलब नयन सर वाज वॉकिंग and now the same Nayan sir is going on a bike or going via car. So can I say each and every point of the road is touched by the tire? या तो फिर नयन सर ऐसे जा रहे हैं
I will make sure that I am not lifting my leg. Yes or no? Distance तो उतना ही cover किया मैंने, but I made sure I am not missing anything. That is called integration. तो summation का मतलब भी होता है to add, integration का मतलब भी होता है. इसको बोलते हैं बेटा डिफरेंशियल एलिमेंट. क्या बोलते हैं इसको? डिफरेंशियल एलिमेंट. मतलब चिंटू. As चिंटू as you can think of. अगर मैं इसको 1 मिलीमीटर बोल रहा हूँ, ये बोल रहा है सर आई कैन गो अप टू माइक्रोमीटर. इसका आंसर मेरे से बेटर है. ये बोलता है नो नो सर आई कैन गो अप टू नैनोमीटर ऑल्सो. फैंटास्टिक. आवर आंसर्स आर रूल्ड आउट. ये बोलता है सर पिकोमीटर, फेम्टोमीटर, एटोमीटर, एटोमीटर. एटो means 10 to minus 36. 10 to minus 18 into 10 to minus 18. जितना हो सके उतना कम. इसको बोलते हैं डिफरेंशियल. और इसका मीनिंग ये होता है चिंटू प्लस चिंटू प्लस चिंटू प्लस चिंटू प्लस चिंटू प्लस चिंटू प्लस चिंटू इज मिंटू. Adding small answers to get a bigger answer. अब समेशन और इंटीग्रेशन में क्या फर्क है? मैं बायोलॉजी स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ. एकदम सिंपल लैंग्वेज, प्रैक्टिकल लाइफ लैंग्वेज, राइट? इजी टू अंडरस्टैंड. नो हाई फाई मैथ्स. You are celebrating your birthday. Is it one particular day of the year? Yes. You may be 15, 16, 17 right now, जो भी है, बराबर? आपका बर्थडे है सपोज 26th of Jan. तो आप हर साल का 26th of Jan सेलिब्रेट करोगे. मान लो आप 16 इयर्स के हो, राइट? तो आपने हर साल का 26th Jan सेलिब्रेट किया. Not all, only 26th Jan. That is called random. Because different human beings will have different birthdays, right? But can we say our growth process is continuous? Yes. You are growing old by every fraction of a second. I am talking to you right now and I am going to finish this sentence in 15 seconds. You are growing old by 15 seconds. I am also growing old by 15 seconds. Do you agree with me? Yes. I was silent for this 15 seconds. Still you are growing old by 15 seconds. I am also growing old by 15 seconds. Do you agree with me? Yes. It's a continuous process. You cannot say you work very hard. I am going to sleep from 10 p.m. to 6 a.m. You also go to sleep. You work very hard. You go to sleep. We will permanently sleep. Yes, sir. That means your body organs are working for every fraction of a second. Whether you are awake or you are not awake. Your nails are growing every fraction of a second. ये नैनोमीटर में बढ़ता होगा. आपकी आईसाइट की ये औकात नहीं है कि आपको ये समझ में आया. भले तू बोल रहा था नैनो, भले तू बोल रही थी एटो, बट अपनी ये औकात नहीं है, राइट? बट कैन वी से दिस इज कंटिन्यूअस प्रोसेस? 3 दिन के बाद मम्मा बोलेगी कितने नाखून बढ़ गए, नालायक काट. जो वो 1 मिलीमीटर दिखाई दे रहा है, लेकिन वो 3 दिन के बाद दिखाए. Does it mean कि in this 72 hours, in this 72 into 86,400 seconds, milliseconds, microseconds, every time these nails must be growing. Hairs will be growing continuously if they are there. Conditions apply. क्या मेरा श्राप है, वो भी ऐसा हो जाएगा. Before, after. 25 साल के बाद अगर मैं जिंदा और तू भी जिंदा और तेरी शादी होगी ना तो तेरा भी हो जाएगा. समझा बेटा? समेशन और इंटीग्रेशन का फर्क समझा. रैंडम का भी मतलब होता है टू ऐड, इंटीग्रेशन का भी मतलब होता है टू ऐड. बट इसमें आप कुछ नंबर छोड़ सकते हो, इसमें आप कुछ नहीं छोड़ सकते. फर्क समझा बेटा? यहां तक समझा? वापिस ये एग्जाम्पल. If derivative of x is 1, then can I say integration of 1 is x? Yes. लेकिन इसमें with respect to बोलना बहुत जरूरी है. मान लो बेटा मैं आपको बोलता what is derivative of sin x, और अगर आप cos x आंसर देते तो मैं आपका आंसर रॉन्ग बोलता. मेरा क्वेश्चन ही रॉन्ग था. मुझे ये पूछना चाहिए था what is derivative of sin x with respect to x. Let us take very simple example. Get up, please. No. Get up. Okay, you get up.
I am saying I am tall. You may deny my statement. Ki sir, you are tall with respect to him. But what about him? Sit down. I am saying I am tall. Now you will be convinced. Because you have something to compare. Okay, Nayan is saying I am tall. Right? I am saying I am heavy. So you will be convinced. Yes sir. He is below poverty line. Logic samjha? Get up. Now if I say I am tall, my statement is again wrong. If I am saying I am short, my statement is again wrong. If I am saying I am short, now my statement is correct because he is taller to me. लॉजिक समझा बेटा? मतलब विथ रिस्पेक्ट टू बहुत जरूरी था. विथ रिस्पेक्ट टू बहुत जरूरी था. आर यू गेटिंग दिस? व्हेन यू से ना मिस्टर अंबानी इज वेल्दी, रिच, सुपर रिच, तो उसमें हम लोग सवाल लेकिन आप लोग जब उनको कंपेयर करेंगे वॉरेन बफेट के साथ, जेफ बेजोस के साथ, एलन मस्क के साथ, तो हम लोग बोलेंगे और स्टेटमेंट में भी रॉन्ग. एलन मस्क का नेटवर्क चेक करना पड़ेगा कि उनके पास कितने पैसे हैं. मतलब कंपैरिजन है ना बेटा. आर यू गेटिंग दिस? सो कंपैरिजन इज दिस. यहां तक समझा आपको? यहां तक समझा? यहां तक समझा? नाउ चेक. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर? 2x. क्योंकि आपका रूल का था d/dx of x raised to n is nx raised to n minus 1. If derivative of x square is 2x, then as per this rule, integration of 2x must be x square. Right? अब इसका रूल क्या है? ध्यान से देखो बेटा. यहाँ पे एक नया रूल लिख रहा हूँ. Integration of x raised to n dx is x raised to n plus 1 upon n plus 1. डेरिवेटिव का बिल्कुल उल्टा है. डेरिवेटिव में आप क्या बोलते थे? डेरिवेटिव में आप क्या बोलते थे? डेरिवेटिव ऑफ, है मेरे पास वो फॉर्मूला बोर्ड पे? नहीं, कोई बात नहीं, मैं वापस लिखता हूँ. What is derivative of x raised to n? nx raised to n minus 1. तो आप क्या बोलते थे? Power becomes multiplier and the new power reduces by 1. अभी इंटीग्रेशन मतलब एंटी डेरिवेटिव, एकदम उल्टा. तो इधर पावर वाज रिड्यूसिंग बाय 1, उसके बदले पावर इज इंक्रीजिंग बाय 1 एंड द न्यू पावर बिकम्स डिनोमिनेटर. मतलब यहाँ पे ये मल्टीप्लायर बनता था, यहाँ पे ये डिवाइजर बनेगा. यहाँ पे हम लोग पहले कोएफिशिएंट लेते थे, बाद में पावर रिड्यूस करते थे. इसमें पावर पहले बढ़ाने का, बाद में डिवाइजर लेने का. समझा कि वापस बोलो? पूरा सीक्वेंस ही उल्टा. मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ ना बेटा, अभी मैं अरेबिक में लिख रहा हूँ. वी स्टार्ट फ्रॉम राइट इन अरेबिक डायलेक्ट. यस और पूरा उल्टा. वापस देखो. n becomes multiplier and then new power reduces by 2. पहले मल्टीप्लायर फिर पावर, पहले पावर फिर डिवाइजर, उल्टा. यस और इसमें बेटा एक ही रिस्ट्रिक्शन है, n कुछ भी हो सकता है, -1 नहीं होना चाहिए. सोचो क्यों? अगर आपका n -1 हुआ तो डिनोमिनेटर 0 हुआ ना, एंड समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड. करेक्ट, समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड. राइट? यहां तक समझा? अब इधर वापस आ जाओ. हाँ, मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर? उल्टा बोलना है तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x विद रिस्पेक्ट टू x शुड बी x स्क्वायर. ब्लैक वाला क्वेश्चन था, ब्लू वाला आंसर. समझा? अभी मैं नया क्वेश्चन पूछता हूं. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 5? ये बेसिक्स आप लोगों ने मैथ्स फाउंडेशन में किया. डेरिवेटिव ऑफ सम इज सम ऑफ डेरिवेटिव्स. d by dx of y plus z is equal to d by dx of y plus d by dx of z. अगर इधर माइनस होता तो इधर माइनस. और इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? डेरिवेटिव ऑफ सम इज सम ऑफ डेरिवेटिव्स. डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस इज डिफरेंस ऑफ डेरिवेटिव्स. समझा बेटा? तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ 5? वापस 2x, because derivative of 5 will be 0. Derivative of constant is 0. अगर मैं ये बोलता हूं ललित वर्मा इज फादर ऑफ नयन वर्मा, that means नयन वर्मा इज सन ऑफ ललित वर्मा. तो अगर डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 2x है, that means इंटीग्रेशन ऑफ 2x वापस x स्क्वायर प्लस 5 होना चाहिए. बराबर? क्वेश्चन चेंज. डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस 11, ये भी 2x है. इंटीग्रेशन ऑफ 2x x स्क्वायर माइनस 11.
अब ध्यान से देखो बेटा, मेरा क्वेश्चन सेम था। मेरा क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज इंटीग्रेशन टू एक्स डीएक्स? व्हाट इज इंटीग्रेशन टू एक्स डीएक्स? व्हाट इज इंटीग्रेशन टू एक्स डीएक्स? पहले आपने आंसर दिया एक्स स्क्वायर, बाद में बोला नहीं सर एक्स स्क्वायर प्लस 5, क्योंकि मुझे इधर 5 दिख रहा है। बाद में आपने बोला सर एक्स स्क्वायर माइनस 11, मुझे 11 दिख रहा है। क्वेश्चन 1, आंसर्स इनफाइनाइट, मालूम नहीं है। ये एक्स स्क्वायर प्लस 0 भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 11 भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1000 भी हो सकता है। It is x square plus some number, and that is why we write this as plus c. This c is called constant of integration. अब ये कब लिखते हैं? अब ये कब लिखते हैं और कब नहीं लिखते हैं? अगर मैं इंटीग्रेशन का साइन सिर्फ ऐसे लिखता हूं, मैंने इसके नीचे कुछ नहीं लिखा है और मैंने इसके ऊपर भी कुछ नहीं लिखा है, then this is called indefinite integral, uncertain, right? तो c लिखने का। लेकिन अगर मैंने ये बोला कि x का वैल्यू 2 से लेके 5 तक जाएगा, या तो x का वैल्यू 1 से लेके 4 तक जाएगा, मतलब इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। मतलब मुझे मालूम है कि मैं कहां से शुरू करूंगा, कहां पे खत्म करूंगा, तो c नहीं लिखने का। यहां पे c नहीं लिखने का। Let me make it simple for you. Let me make it simple for you, and then I'll come back to this example. कल संडे है, आपका एग्जाम कितने बजे बेटा? ठीक है, यूजुअली कितने बजे होता है? 10 o'clock। 10 o'clock होता है ना। अब मैं ये बोल रहा हूँ बेटा कि कल सुबह मैं एक एक्स्ट्रा लेक्चर ले रहा हूँ। हाँ, आप यहाँ से फिर डायरेक्ट बाल भारती चले जाओ। हाँ, मैंने बोला कि कल सुबह मैं एक्स्ट्रा लेक्चर ले रहा हूँ संडे। आप लोग बोलोगे कितने बजे? मुझे चालू वीडियो में गुस्सा नहीं होना होता है। इफ आई गो वाइल्ड ना, इट विल बी वर्स्ट डे फॉर यू। क्या कर रही है तू कभी से? बताऊं क्या कर रही है? मुझे सब दिखता है इधर से। यू आर मेकिंग सम ड्राइंग ऑन द राइट साइड नियरर टू द स्क्रीन। एम आई राइट? एम आई राइट? मैं तो आया भी नहीं हूं ना उधर। बेच तेरी बुक बेच। इधर आ! बुक दे। What if I send this to your parents? ये मैं वीडियो में बता रहा हूँ, और मैं चाहूँ ना तो तेरा फेस वीडियो में लेके आऊंगा अभी। क्या होगा फिर तेरा? I can cancel your admission. Your BP must have shot up right now. बराबर ना? हाँ, फ्री है तू। देख इतनी औकात है और अपने को इतना फिजिक्स आता है तो प्रूव करके बताना बॉस। एवरी टाइम 180। इतनी इंटेलिजेंट है तू। कितना आता है मार्क्स? बोल, आई एम आस्किंग यू। कितना? 100 out of 180. Where the hell do you stand? 50% plus? Less than 60%? Idiot. डॉक्टर बनोगे तुम? नहीं बनना चाहिए। You are the threat for the society. Next time if I see this, I'll kick you out from mindsetters, not physics. Mind you, मैं लास्ट 20 मिनट से देख रहा हूँ। मेरा ऑब्जर्वेशन बहुत खतरनाक होता है। उधर वो कॉर्नर पे बैठ के क्या करेगी मुझे मालूम होता है। मैंने बोला था ना, ये औकात में रहो अपनी, और नहीं आना, नहीं आने का। You are not obliging me, okay? Nobody on the planet is obliging me by attending my lecture. I have already made my career. I am on the peak of it. मैं मेरी मर्जी से रिटायर हो जाऊंगा। स्टूडेंट कौन होते हैं मुझे रिटायर करने वाले? जिस दिन मुझे लगा ना मैं बराबर नहीं पढ़ा रहा हूँ, या तो मेरे स्टूडेंट्स मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं उनको समझ में नहीं आ रहा, मे बी आई एम अ बोरिंग पर्सन फॉर दैट, मैं छोड़ दूंगा टीचर। जिस दिन में तुम लोगों की आंखों में बोरियत दिख गया ना कि नरेंद्र सर के लेक्चर में मज़ा नहीं आता, आई विल ग्रेसफुली रिजाइन। आई एम दैट पर्सन। पहले अपनी करियर बनाओ, ये सब बाद में नाटक करो। यू स्पॉइल्ड माय रिकॉर्डिंग। Sorry students, those who are watching the video ignore. मेरा बाकी का पार्ट देखो वीडियो, मजा आएगा। Am I right? Yes, sir. ये सब नहीं पढ़ाएंगे तुम लोगों मैथ्स में, मजाक नहीं कर रहा हूँ। Back here, what was integration of 2x? It could be x square, it could be x square plus 5, it could be x square minus 11. Yes or no? मतलब uncertain आंसर था।
you must write C. लेकिन अगर मैं ये बोल रहा हूं कि आई एम गोइंग फ्रॉम 2 to 5, मतलब x is equal to 2 to x is equal to 5, मतलब मैं श्योर. लेट मी गेट बैक टू दैट एग्जांपल. टुमारो यू गॉट एग्जाम एट 10 o'clock. मैं बोल रहा हूं बेटा कल सुबह मैं एक्स्ट्रा लेक्चर ले रहा हूं. ओके सर, कितने बजे? मैं बोलूंगा मालूम नहीं है. अरे सर, अच्छा कितने बजे तक लोगे? मैं बोला मालूम नहीं है. बट आई विल लीव यू ऑन टाइम सो दैट यू कैन रीच बालघाटी. अब आपको मालूम ही नहीं कि नहीं सर कितने बजे शुरू करेंगे, तो मैं आप अपने रूटीन टाइम के हिसाब से आए 7 o'clock. ओके, 7 o'clock से आप वेट कर रहे हो. मैं आया 8:30 को. आई केप्ट माई सेल्फ सेफ. आई डिड नॉट कमिट कि मैं 7 o'clock आऊंगा. मैंने क्या बोला है? आई टेक एक्स्ट्रा लेक्चर इन द मॉर्निंग. मैंने 8:30 को लेक्चर शुरू किया, 8:35 को छोड़ दिया. आप लोग भर भर के मुझे गाली दोगे यार, सुबह सुबह जल्दी उठे, अपना रिवीजन छोड़ के आए. कुछ बच्चे तो विरार से आ रहे हैं, मुझे आने में 1.5 घंटा लगता है. ये बंदे ने 5 मिनट का लेक्चर लिया. यार अपना प्रीवियस लेक्चर थोड़ा खींच लेता, 5 मिनट पढ़ा से एक्स्ट्रा क्यों बुलाया? बट आई केप्ट माई सेल्फ सेफ. आई डिड नॉट कमिट कितने टाइम का लेक्चर. दैट इज इंडेफिनिट. दैट इज इंडेफिनिट मतलब वो ड्यूरेशन कुछ भी हो सकता है, स्टार्ट कितने बजे भी हो सकता है, आई डोंट नो. अब मैं बोल रहा हूँ कि बेटा कल सुबह मैं एक्स्ट्रा लेक्चर ले रहा हूँ, राइट, 7:30 to 9:30. मीन्स यू आर श्योर अबाउट ड्यूरेशन ऑल्सो, टाइम ऑफ स्टार्ट ऑल्सो, एवरीथिंग. सो यू विल नॉट आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड, क्योंकि आपको मालूम है आपको यहाँ से बालभारती पहुँचने में आधे घंटा लगने वाला है, और उतना टाइम मैं आपको दे रहा हूँ. लॉजिक समझा बेटा? श्योर. सो व्हेन यू डोंट नो द स्टार्ट, when you don't know the start and when you don't know the end, इसको बोलते हैं lower limit, इसको बोलते हैं upper limit, then you must write C. But when you know the lower limit and when you know the upper limit, you must not write C. अच्छा, C नहीं लिखना है तो फिर आगे क्या करना है? C नहीं लिखना है तो फिर आगे क्या करना है? राइट? मैंने आपको बोला है कि I am giving you integration x cube dx. राइट? तो n का वैल्यू 3 हो गया, बराबर ना? अपना फॉर्मूला क्या है बेटा? x raised to n plus 1 upon n plus 1. तो मेरा आंसर आएगा x raised to 3 plus 1 upon 3 plus 1. मतलब मेरा आंसर आया x raised to 4 upon 4. C नहीं लिखना है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं 2 से शुरू करूंगा 4 तक जाऊंगा. बराबर? इसको मैंने लिखा स्क्वायर ब्रैकेट, नीचे लिखा 2, ऊपर लिखा 4. मैं इधर लिख रहा हूँ x equal to 4. 5 लिखा है, 4 5 लिखा है ना? 2 to 5, सॉरी, ये मैं कर देता हूँ 2 to 5, सॉरी. मैं 2 से शुरू करूंगा 5 पे जाऊंगा. दैट मींस 2 इज अ लोअर लिमिट, 5 इज अ अपर लिमिट. अब क्या करने का? जिधर जिधर x उधर उधर अपर लिमिट, माइनस जिधर जिधर x उधर उधर लोअर लिमिट. लेट मी एक्सप्लेन व्हाट डू आई मीन बाय दैट. मैं बोलता हूँ बेटा, मैं आपको 2 कोऑर्डिनेट्स देता हूँ, x is equal to 1 and x is equal to 4. आप सेगमेंट बनाओ. What will be the size of that segment? 3. Very good. How did you do that? 4 minus 1. Very good. Does it mean higher coordinate minus lower coordinate? Yes. Therefore, higher limit minus lower. समझा? 1 by 1. इधर C लिखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता नहीं मेरा स्टार्ट क्या है, मेरा एंड क्या है. इधर C नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है मैं 7:30 शुरू करूंगा, 9:30 खत्म कर दूंगा. मैं श्योर हूं मैं 2 से शुरू करूंगा, 5 पे आऊंगा. एम आई राइट? तो इधर C नहीं लिखने का. स्टेप नंबर 1, C नहीं लिखने का. तो फिर क्या लिखने का? पहले इसका सोल्यूशन लिखने का. व्हाट इज x क्यूब dx का इंटीग्रेशन? x raised to 4 upon 4. ये समझा? पॉइंट नंबर 1. बाद में स्क्वायर ब्रैकेट, बाद में 2 to 5, लोअर लिमिट अपर लिमिट, बाद में जिधर जिधर x उधर उधर 5, माइनस साइन, जिधर जिधर x उधर उधर 2. तो ये क्या आएगा? 5 raised to 4 upon 4 माइनस 2 raised to 4 upon 4. समझा बेटा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. आपने वो सेगमेंट का साइज 3 कैसे निकाला? हायर कोऑर्डिनेट माइनस, यस और नो? So this will be 625 minus 16 upon 4 is a common denominator. That means 609 upon 4. Means I am landing up to some fixed answer. अगर बेटा मैं इसको 2 to 5 बोलता तो मेरा ये आंसर आया. अगर मैं इसको 2 to 4 बोलूंगा तो भी मेरा एक कोई तो फिक्स आंसर आया.
2 to 3 बोलूंगा तो भी मेरा एक फिक्स आंसर आएगा। लॉजिक समझा? That is called definite integral. So what is the meaning of when to use C and when not to use C? Understood? Yes. Right? When you don't have the upper limit and lower limit, this is called indefinite integral. It is called indefinite integral. Right? And when you have those limits, then these are called definite integrals. बराबर? अभी एक दो बेटा एकदम बेसिक क्वेश्चंस, क्योंकि ये आपको पता है। Tell me, what is derivative of sin x? And therefore, what should be integral of cos x? Perfect. What is derivative of cos x? And therefore, what should be integral of sin x? Derivative of sin x is equal to cos x. Therefore, integration of cos x dx. ये लिखना बहुत जरूरी है। इज इक्वल टू साइन एक्स। ये सही है कि रॉन्ग है? वेरी गुड, वेरी गुड। प्लस सी क्यों लिखने का? क्योंकि मैंने लिमिट्स डिफाइन नहीं किया ना। ओके, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ cos x? सो व्हाट शुड बी इंटीग्रल ऑफ sin x? समझा बेटा? एकदम श्योर? अभी यहाँ पे मैंने कंडीशन डाला था n -1 नहीं होना चाहिए। What if n is -1? Answer will be log x. Oh lovely. Try to understand. What is derivative of log x? Very good. So what is integration of 1 by x? Log x plus c. Does this mean integration of x raised to -1 dx is log x plus c? Oh lovely. But that means when n is -1, you don't say that your answer is not defined. You say that your answer is log x. समझा कि वापिस बोलूं? देखो इधर वापिस, ये फॉर्मूला में n -1 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं इसके हिसाब से सॉल्व करूं तो -1 + 1 is 0. राइट? अब मैं डेरिवेटिव पे जा रहा हूँ। डेरिवेटिव ऑफ log x is 1 by x. तो इसको मैं उल्टा बोलूंगा तो कैसे बोलूंगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x with respect to x is equal to log x plus c. अब वो जो 1 by x लिखा मैंने, उसका मतलब क्या हुआ? x raised to -1, no? Means I could come to some conclusion. Yes or no? ये मैं जो लिख रहा हूँ ना, this is like ABCD of derivatives. आपको ABCD आएगा तो ही वर्ड्स आएगा, वर्ड्स आएगा तो ही सेंटेंसेस आएगा, और सेंटेंसेस आएगा तो ही ऐसे लिख पाओगे। That's why today's lecture is extremely important. अब बेटा आज का लास्ट पार्ट, पेंडिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट MCQ ऑफ द चैप्टर वेक्टर्स। मैं आपको ये क्वेश्चन याद कराता हूँ। उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि इफ r वेक्टर इज r cos omega t times I and r sin omega t times j where omega is constant, हम लोगों ने लिखा था k sin kx, वो लोग k के बदले ओमेगा लिख रहे हैं। r anyways is the radius of the circle, तो वो कांस्टेंट है। इसको उन्होंने बेटा नाम दिया है डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट नाम क्यों दिया है वो भी बोलता हूं। इफ दिस इज द क्लॉक हैंड, सेकंड हैंड, एंड दिस इज रोटेटिंग, देन कैन आई से द टिप ऑफ द हैंड इज परफॉर्मिंग सर्कल, राइट? लेकिन लेंथ ऑफ द पेन विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. व्हाट कैन यू से अबाउट लेंथ ऑफ द पेन हियर? Radius of the circle. Radius of the circle is constant. But what about radius vector? Constant ki not constant? Because every fraction of a second direction is changing. ये हम लोगों ने वेक्टर्स में किया था। डेल्टा r इज इक्वल टू 2r sin थीटा बाय। वो लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग इसको डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं। आप एक्सीलरेशन ढूंढो, आप एक्सीलरेशन ढूंढो। अप्लाई कॉमन सेंस। हाउ विल यू फाइंड एक्सीलरेशन?
अगर मैं इसका एक बार डेरिवेटिव लूं तो मुझे वेलोसिटी मिलेगा, एक बार और डेरिवेटिव लूं तो एक्सीलरेशन मिलेगा. दैट इज व्हाट वी हैव टू डू, दैट इज व्हाट वी हैव टू डू. इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लो, इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लो बेटा. माय स्टेप नंबर 1, आर वेक्टर is r cos omega t times I plus r sin omega t times j. ये कौन है? ये कौन है? डिस्प्लेसमेंट, बराबर. अगर मैं dr by dt ढूंढूं, राइट, तो इसको मैं वर्डिंग्स में कैसे बोलूंगा मैथमेटिकल लैंग्वेज में? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के बजाय फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो बेटा ये हो गया वेलोसिटी. आप आराम से मुझे इसका डेरिवेटिव बोलोगे. दिस इज डी बाई डी टी ऑफ आर कॉस ओमेगा टी टाइम्स आई एंड डी बाई डी टी ऑफ आर साइन ओमेगा टी टाइम्स जी. मैंने कौन सा रूल यूज किया? डेरिवेटिव ऑफ सम इज सम ऑफ डेरिवेटिव. आपने मुझे इसका आंसर बताना है. 3, 2, 1. Therefore velocity vector is, पहले वाले का डेरिवेटिव बोलो. r एनीवेज कांस्टेंट है, ओमेगा उन्होंने कांस्टेंट बोला है. आउटर इनर रूल, डेरिवेटिव ऑफ आउटर कीपिंग इनर एज इट इज. So is it minus sin omega t into derivative of omega t? Will it be omega? What was derivative of k sin kx? k बाहर गया था. Derivative of sin kx was cos kx into derivative of kx was k. वही हो रहा है ना? ये हो गया बेटा I. चलो नेक्स्ट वाला ट्राई करो आप. r बाहर, derivative of sin omega t is cos omega t into omega times j. You know आपको क्या मिला? आपको वेलोसिटी मिला. इसको बोलते हैं वेलोसिटी बिकॉज इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो ये आपको मिला वेलोसिटी. हाँ, एक बेटा मैं लास्ट स्टेप के लिए रेड कलर यूज करता हूँ, प्लीज डोंट माइंड. थर्ड स्टेप क्या होगा? एक्सीलरेशन इज dv by dt. So is it d by dt of minus r omega sin omega t times I and d by dt of r omega cos omega t times j. ये मुझे वेलोसिटी मिला था. अभी मुझे उसका टाइम डेरिवेटिव लेना है. राइट, चलो बेटा ये लास्ट स्टेप है. 1 by 1 बोलो. एक्सीलरेशन का देयरफॉर आंसर क्या आएगा? माइनस आर ओमेगा बाहर. What is derivative of sin omega t? Cos omega. Very good. Is that all? No. Into omega. So this is cos omega t into omega times I plus r omega बाहर. Derivative of cos minus sin. Proud of you. Sin omega t into omega times j. समझा? हे इतना लंबा चौड़ा इक्वेशन दिख रहा है. डर के आगे जीत है. ये मैं माइनस साइन कॉमन ले रहा हूं, ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं, आर कॉमन ले सकता हूं, जानबूझ के नहीं ले रहा हूं, मेरी मर्जी. आर कॉस ओमेगा टी टाइम्स आई प्लस आर साइन ओमेगा टी टाइम्स जे. ये वाला ब्रैकेट मेरा क्वेश्चन था. ये बंदा आर वेक्टर है. इसका मतलब मेरा इक्वेशन एकदम सिंपल हो गया. इज इट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर. और ये ऑफिशियली मैं प्रूव करने वाला हूं. द नेम ऑफ दिस आर्टिकल इज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन. और सर्कुलर मोशन में आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, या तो सिर्फ एक वर्ड सुना होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स. कोई भी सर्कुलर मोशन, whether it is electron revolving around the nucleus or it is earth revolving around the sun,
सेंट्रीपिटल फोर्स इज कंपल्सरी। सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है मतलब सर्कुलर मोशन नहीं है, सर्कुलर मोशन है मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स है, पक्का है। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दोनों साइड पे आप मास से मल्टीप्लाई करो, बिकॉज फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये इक्वेशन मिलेगा -m⍵² r, एंड दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। एनीवेज वो मैं करने वाला हूं, यस और नो? समझा अच्छे से? ये बेटा आपका सेकंड पार्ट हुआ, शुरू हो जाओ। किसका लेक्चर इसके बाद? मैं आरिफ सर को रिक्वेस्ट करूंगा 10 मिनट लेट शुरू करें। एनीवेज ये बराबर है ना? आपने आता है ना? बस तो 15 मिनट मेरे लिए शुरू करो। अच्छा ध्यान से सुनो, वी स्टॉप हियर, वेट। होमवर्क फॉर माय नेक्स्ट लेक्चर विल बी, पहला जो बोर्ड वर्क आपने कॉपी किया और अभी का जो आपने बोर्ड वर्क कॉपी किया, एवरीथिंग ट्वाइस, राइट? एंड डोंट जस्ट कॉपी दिस, मास्टर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी स्टॉप हियर।